MCHI तर्फे सन्माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांचे हार्दिक स्वागत. थैंक यू वेरी मच सर कि आप क्रेडाई MCHI के ग्रँड प्रॉपर्टी एक्सपो 2022 में आए. धन्यवाद साहेब, आपण या ठिकाणी आपले वेळ काढून आले त्याबद्दल आपले हार्दिक आभार. Ladies and gentlemen, can we have a loudest round of applause for our Honorable Chief Minister of the state of Maharashtra, Shri Eknath Shinde Sahib. So ladies and gentlemen, if the real estate of Mumbai and Maharashtra has sustained and is on a road to recovery post the pandemic, it is all because of our Honorable Chief Minister, Shri Eknath Shinde ji. It is his initiative to release unified DCPR for entire Maharashtra because of him, for the first time in history, 50% premium was reduced so that real estate development gets the required support for survival. Sir, thank you very much for this effort. The entire industry is thankful to him. So we have a small video that we would like to play. Can we have the AV on screen, especially for sir? Our Honorable Chief Minister, Shri Eknath Ji Shinde, has always been a pillar of strength and support, giving the real estate the grandest peak and growth, boosting real estate not only in MMR, but the whole of Maharashtra state. This is evident in the accomplishments that the real estate has achieved together under his vision. Under the leadership of our Honorable CM, our UD Minister marked the most momentous period for the real estate. In his tenure, from November 2019 to 27th June 2022, the following revolutionary measures were conceptualized, executed and attained. Summation of unified DCPR for the whole of Maharashtra state. Reduction of 50% in premium payable amount. Implementation of cluster redevelopment in Thane. Magnification and incentives added to 33.7 and 33.9 schemes to boost Mumbai city redevelopment. Not only this, some of the most revolutionary and innovative measures taken for Navi Mumbai have been revision and amendment of floor space index to 1.5 times from 1.1. Additional FSI approved modified agreement as per UDCPR 2020. Commitment to resolve AAI height contention. A pioneer by every means who has been a torchbearer. We further look forward and seek your guidance and support in achieving the following efficiently. Permanent reduction of stamp duty. Reduction of premium at 50% to make housing affordable for the citizens of Maharashtra. With this vision and your guidance again, we aim at making the real estate the strongest backbone of India. Can we have a loudest round of applause as we request Baman sir to escort our Honorable Chief Minister Shri Eknath Shinde ji. We request Jitendra sir to escort Dr. Bhushan Gagrani ji, the Principal Secretary Urban Development. We request Dominic sir to escort Shri V.S. Srinivas, our Metropolitan Commissioner MMRDA. We request Mr. Sukhraj Nahar to escort Shri Vijay Suryavanshi ji, the Additional Commissioner MMRDA. We request Mr. Deepak Garodia ji to escort Shri Shravan Hardikar, the IGR Government of Maharashtra, to the stage. क्रेडाई MCHI तर्फे सन्माननीय महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहेब यांचे हार्दिक स्वागत. धन्यवाद साहेब, आपण या ठिकाणी आपले वेळ काढून आलेत त्याबद्दल आपले हार्दिक आभार. First and foremost, we would request Mr. Jitendra Mehta, President of Credai MCHI Thane chapter, to felicitate Shri Bhushan Gagrani Sahab. Can we have a round of applause as we felicitate Shri Bhushan Gagrani Sahab?
And I request everyone to put your hands together. This is for you and this is for us. We request Mr. Sailesh Puranik, Vice President, CREDAI MCHI. Please join us on stage and present our token of appreciation to Shri Vijay Suryavanshi ji, the KDMC Commissioner. And can we also have a round of applause? Thank you. We would request Mr. Dominic Rommel to join us on stage and felicitate Shri S.V. Srinivas ji, the Metropolitan Commissioner, MMRDA. Can I request Srinivas ji to join us? And say a few words, sir. Sir, we would request if you could please say a few words and address the August gathering. Can we please put our hands together as we welcome Srinivas ji to the dais. Honorable Chief Minister, Maharashtra, Sri Mani Eknath Ji Shinde sir, and Additional Chief Secretary and Additional Chief Secretary to Chief Minister as well as Additional Chief Secretary Urban Development Sri Bhushan Gagrani ji, उपस्थित श्री अजय जी आशर जी, and the office bearers of MCHI, including of course the chairman Irani, and office bearer, secretary, treasurer, as well as the members of the MCHI. A warm welcome to Honorable Chief Minister to BKC sir for coming, and thank you very much sir for coming and inaugurating this event. Secondly, the context of what is happening in the world over, the global macro picture, what is happening in the financial markets is well known, what is happening in the currency markets, and what is happening in the macro level at the world over, the economies of different advanced countries and their impact on the Indian economy is for all of us to see. However, in the last 2-3 months and earlier, as Urban Development Minister and Chairman MMRDA, Shri Eknath Shinde ji has, Honorable Chief Minister, has actually taken some steps which are very revolutionary and radical. Especially all of us are grateful to him for giving concessions during the COVID period. He was a strong supporter, all of you, and I think we should give a round of applause to Honorable Chief Minister for doing this. A big favor to the real estate industry in India, in Mumbai and Maharashtra. Secondly, sir, one of the very important points, as Honorable Chief Minister and Chairman as well as Urban Development and other portfolios with you, Mumbai has to have this competitive edge as far as economic growth is concerned. Mumbai and MMRDA, MMR region contributes about 40% of the state GDP, and a lot of income tax and various other ratios all well known. But the city and MMR region has to come out with some competitive edge. For that, certain measures I am sure sir has taken and he is going to take, and he is going to announce also perhaps, and the government is going to come out with policies, not only with premiums and duties but many other concessions. But the most important is to how to generate demand. That is possible if there is an economic growth and leading to employment generation, sectoral growth in the city and MMR region. That is one point. And secondly, a lot of infrastructure actually Honorable Chief Minister is driving. And as we speak, more than 1 lakh crore worth of projects are happening in Mumbai alone and MMR region. And very soon, next year, we are going to commission, we are trying to commission, Chief Minister sir has given me a target, but the end of next year, before that we should finish the Mumbai Trans-Harbour Link, where we will be able to actually connect Mumbai to the rest of India and rest of Maharashtra, and Mumbai will no longer be an island city, and a lot of exponential growth rates will take place, expect to take place in not only in South Mumbai and the rest of Maharashtra, rest of MMR, but mainly on the mainland also. So in this context, MMRDA is with all of you and will be going under the guidance of Honorable Chief Minister, and a warm welcome
to Honorable Chief Minister as well as the ACS Urban Development, and a big thank to all of you. Thank you so much. Thank you very much, sir, for your words of wisdom. And like I said, can we have a louder and a warmer round of applause for all the plans that we have set for the future? Now I would request Shri Ajay Ashar, the President-elect Redeye MCHI, to take the stage and say a few words. Good afternoon, sir. Good afternoon, everybody. Honorable Chief Minister Shri Eknath Shinde ji, UD Secretary Shri Bhushan Gagrani ji, MMRDA Commissioner Shri Srinivas ji, Additional Commissioner Shri Vijay Suryavanshi ji, my President Maman Irani, and all my fellow developers. It gives tremendous happiness and pleasure to all of us that the Honorable Chief Minister has come here and inaugurated our exhibition. I request you to, ये हॉल तालियों से गूंजना चाहिए मेरे दोस्त. Thank you. ये गूंज इसलिए चाहिए कि हमारे बीच एक ऐसा नेता बैठे हैं, ऐसे नेता बैठे हैं जिन्होंने लास्ट 3 महीने में पूरे देश नहीं पूरे विश्व को बहुत बड़ी गूंज सुनाई दी है, जिनके कार्य से इतनी बड़ी गूंज हुई है कि बहुत ज़्यादा हलचल मच गई है. Not only in our country, but it was trending in 33 countries what was done in June. Friends, we are indeed very lucky कि आज हमारे बीच ऐसे चीफ मिनिस्टर साहब हैं जो कंप्लीट चेंज में मानते हैं. जो सबसे बड़ा चेंज किया वो तो मैंने अभी जिक्र कर दिया कि जो भी दुरुस्ती करनी थी साहब ने जून में कर दी. तो लेकिन साहब का नेचर ऐसा है कि ही हैज बीन कंटिन्यूसली, ही इज अ मैन हु वांट्स चेंजेस, ही इज अ मैन हु वांट्स रिफॉर्म्स, ही इज अ मैन whom we in our industry call the industry savior, and he is a man who is constantly focusing on improving the infrastructure, be it the state or be it the city. State में Nagpur-Mumbai, which was a Nagpur-Mumbai Express, which was a revolutionary concept, 700 kilometers of road. आज से करीब 5-6 साल पहले उसकी कल्पना हुई और आज तैयार है. मे बी एंड ऑफ द मंथ साहब उसका इनॉग्रेशन करेंगे पीएम साहब के हाथ से. So amongst us is a person who is dynamic, who is ever working, who is ready to accept suggestions, who is ready to look into it, and who has formed a wonderful team around him. A team of Gagrani sir and Srinivas sir, all very, very positive people who give positive suggestions. They hear what our plea is, they hear what is required, they look around what is happening, and they really encourage us to do better things. Friends, indeed, we are very, very lucky. इतना सब जो साहब ने चेंज किया है, तो आज मुझे अपनी इंडस्ट्री, हमारी तो आदत है जब इंडस्ट्री फोरम में होते हैं तो हमारे हाथ ऐसे ही होते हैं, विनती करते हैं कि सर और कुछ दीजिए, और कुछ दीजिए. तो जो मेरा कर्तव्य है वो मैं निभाऊंगा, एंड इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट. सर, कुछ जो आपने ये एक बिगाड़ सुधारा है, लेकिन हमारे इंडस्ट्री में एक क्रॉनिक बिगाड़ हो गया था 2012 में. 2012 में जब DCPR 2034 आया, तो उसके बाद मैं आपको गारंटी से बोलता हूं कि यहाँ जितने भी डेवलपर्स बैठे हैं उनके बैलेंस शीट कम 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 होते जा रहे हैं. और ये फैक्ट है सर. आप कोई भी बैलेंस शीट, हमारा टर्नओवर शायद बड़ा होगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी हैज टेकन अ कंप्लीट बीटिंग.
यानी आज जो खराब परिस्थिति है उसका वन ऑफ द मेजर रीज़न, इस फोरम पे मैं इतनी हिम्मत रख के आपको रिक्वेस्ट करके बोलता हूं कि जो 2034 DCPR आया है, इसमें 2 खराबी मूलभूत थी सर। पहली खराबी ये है कि जो पूरे शहर को खराब कर रहा है। हम ऐसे ही बिल्डिंग बना सकते हैं जो स्ट्रेट है, इट इज मैच बॉक्सेस, उसके सिवा हम कुछ बांध ही नहीं सकते हैं। आज ऐसी सिचुएशन हमारी हो गई है। हमको हमारे मुंबई को, आज अगर मुंबई में हम लोग जब भी फोर्ट एरिया में जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो ब्रिटिश ने बनाए हैं वो बिल्डिंग्स इतने बेहतरीन है, आज हेरिटेज है, हम उनको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं। और what we are producing now is simply something which we would not like to see in another 15 years, 20 years. मेरे रिक्वेस्ट है सर कि ये एक चीज तो बहुत ही जरूरी है, चेंज करनी है सर। दूसरा जो सबसे बड़ा बिगाड़ हुआ वो था प्रीमियम का सर। प्रीमियम उस दर पे लेके गए थे कि आज ऐसी पोजीशन हो गई है सर। मैं एक सिंपल एग्जांपल देता हूं, 5000 मीटर का प्लॉट सर, आज के रेट पे मुझे 300 करोड़ रुपया भरना पड़ रहा है फॉर प्रीमियम। एंड आई वांट टू डू अ स्टूडेंट हॉस्टल फॉर एग्जांपल, एंड आई कांट डू इट बिकॉज द रेट्स आर सो हाई। एंड मैंने वो प्लान कैंसिल कर दिया है क्योंकि वो परवड़ता नहीं है। आज मैं ऐसी पोजीशन पे हूँ कि यार 300 करोड़ अगर कॉरपोरेशन को बन रहे हैं तो शायद मैं ये प्रोजेक्ट छोड़ दूँ। सो एक चार्ट हमने बनाया है सर, मैं आपके सामने रखना चाहूँगा, जो रिक्वेस्ट करूँगा साहब को दे, पेज निकाल के दे। समरी ऑफ स्टडी रेसिडेंशियल जो प्रीमियम्स है, बमन जी प्लीज़ बताइए। हमने मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, पुणे, अहमदाबाद के प्रीमियम्स का कंपैरिजन किया है कि वेयर डज बॉम्बे स्टैंड एज कंपेयर्ड टू मुंबई, चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली एंड पुणे। सर मुंबई का रेट है उससे चेन्नई 9.92% टाइम्स ज़्यादा है, बेंगलोर 47.35% टाइम्स मुंबई इज कॉस्टलियर देन बेंगलोर। हैदराबाद से हम 50 टाइम ज़्यादा है, इट इज़ नॉट परसेंट, 50 टाइम्स। दिल्ली 934 टाइम्स, पुणे 9.58, अहमदाबाद 6.69। ये रेसिडेंशियल की कंपैरिजन है सर। और सर अगले पेज पे मैंने एक कंपैरिजन दिया है कमर्शियल का। सर आपको इतना बताना चाहूँगा कि क्यों कमर्शियल इंपॉर्टेंट है। हम देख रहे हैं कि अभी ओनली रेसिडेंशियल आ रहा है। हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, ये सब आईटी पार्क्स और अच्छी ऑफिसेज सब यहाँ पे जा रहे हैं। प्राइमरी रीज़न इसका है कि यहाँ पे रेट अफोर्डेबल नहीं है, और रेट अफोर्डेबल नहीं होने के रीज़न कि आज बम्बई है वो चेन्नई से 13 टाइम्स महंगा है, बेंगलोर से 66 टाइम्स महंगा है, हैदराबाद 76 टाइम यहाँ से सस्ता है, और दिल्ली से मुंबई 9000 टाइम महंगा है। सर अगर ये पोजीशन रही तो यहाँ पे कमर्शियल नहीं आएगी, और कमर्शियल नहीं आए तो हम जॉब्स कैसे देंगे, हम कैसे इंडस्ट्री डेवलप करेंगे। Mumbai is the financial capital of the country, and if we want to maintain Mumbai as the financial capital of the country, sir, we need to do this. You are the only hope, you are the only person who can change this, क्योंकि आप चेंज के मास्टर है सर। सर आपके वजह से मैं ये बोल सकता हूँ कि जो आपने छोटी क्लिपिंग दी, आपने जो पुढ़ाकार लिया था कि स्टैम्प ड्यूटी 3% पे कर डाली थी, 2% पे कर डाली थी, आपने जो पुढ़ाकार किया था 50%, आज जो इंडस्ट्री रिवाइव हुई है, हमने लास्ट 3 साल से कोविड और ये प्रॉब्लम के वजह से कोई एग्जीबिशन नहीं किया था, क्योंकि आपने प्रीमियम पे 50% किया, इसलिए ये सब जान में जान आई है कि नहीं?
जरा जोर से बोलो भाई। इसी वजह से आई है बिकॉज आपने हम लोगों में जान डाली है। तो हम सभी आपको हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करेंगे कि ये हमारे प्रॉब्लम्स है वो आप जरा सॉल्व करिए, और आपके हाथ में सब कुछ है। लकीली गगरानी साहब इज वेरी पॉजिटिव इन दिस। और जो पहला इश्यू था, जो पहला पॉइंट ये प्रीमियम का इश्यू था, डीसीपीआर का इश्यू था, सर बहुत ये सब प्रॉब्लम एक ही स्ट्रोक में ख़त्म हो सकते हैं अगर हम लोग यूनिफाइड डीसीपीआर एक्सेप्ट कर लें मुंबई के लिए, तो ये सब खत्म हो जाएंगे। खत्म हो गया क्या नहीं? हाँ, सब लोग मंजूर है? सर यूनिफाइड डीसीपीआर आपकी देन है सर। सर ये आपका बच्चा है यूनिफाइड डीसीपीआर। हम मांग रहे हैं एक और उसका ट्विन यहाँ पे मुंबई दे दीजिए, या उनको हमको अडॉप्ट करा लीजिए, तो हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। सर सेकेंडली एक और बहुत ही इम्पोर्टेंट मसला है जो देखना चाहिए सर, और वो मसला ऐसा है कि थोड़ा ट्रैफिक डिकंजेशन, ट्रैफिक डिकंजेशन इज़ अ वेरी बिग इश्यू सर। श्रीनिवासन साहब यहाँ बैठे हैं, मैं उनको 2-3 बार मिल के भी आया हूँ, सीपी मुंबई से भी हमने मेरी बात हुई है। सर थोड़ा फोकस करके लेट अस कॉन्सेंट्रेट टू डिकंजेस्ट ट्रैफिक। हमारे बहुत सा वक्त जाता है इसमें, एंड इट इज़ अ प्रॉब्लम फॉर ऑल द। विद दिस माय हम्बल रिक्वेस्ट जो भी थी मैंने आपको कर दी है सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। Thank you very much, sir. And I think things are looking bright. We would now request our President CREDAI, MCHI, Shri Boman Irani ji, to come up on stage and share a few words. Can we please give him a warmest round of applause and welcome. Thank you. First of all, Ajay bhai, thank you. You put across all the demands very beautifully, all our requests very beautifully. And CM sir, thank you very much for listening. So, a very warm welcome to our Honorable Chief Minister, Shri Eknath Shinde ji. With him, UD Principal Secretary Bhushan Gagrani ji, MMRDA Chief Srinivas ji, Vijay Suryavanshi ji, office bearers of CREDAI MCHI, my past presidents, and my dear friends. Today's event truly is blessed because we have a CM sir who in his earlier avatar as a UD minister really created miracles. And Ajay bhai, you are right. Ajay bhai, you are right that basically this gathering is so successful only because of the steps taken by the Maharashtra government at that point of time. Had it not been, साहब अगर आपने तभी वो 3% स्टैम्प ड्यूटी रिडक्शन यानी 2% स्टैम्प ड्यूटी एंड 3% स्टैम्प ड्यूटी नहीं की होती तो ये इंडस्ट्री रिवाइव होने का चांस था ही नहीं। अगर आपने तभी 50% का वन टाइम जो बेनिफिट दिया वो नहीं दिया होता तो हमारे चहल साहब ने भी बोला ऑलमोस्ट 200 स्टक प्रोजेक्ट्स को रिवाइव किया आपने। तो सर ये सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको सिर्फ बताना चाहता हूँ। लास्ट टाइम गगरानी साहब भी थे एक और इवेंट में हमारे, और हमारे हफीज़ कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट आए थे और उन्होंने बहुत ज़ोरों से रिक्वेस्ट की थी, रादर रोते रोते रिक्वेस्ट की थी कि मुंबई की जो एक ब्यूटी है वो उसके डिज़ाइन में है। रादर दुनिया की कोई भी जगह आप देखो तो वर्ल्ड में बिल्डिंग से वो सिटी रिकग्नाइज हो जाती है। मुंबई में लास्ट 8-10 साल से सर एक भी ऐसे कोई बिल्डिंग बन नहीं सकती जिसमें कोई डिज़ाइन फीचर ना हो या कोई एलिवेशन फीचर हो जिससे वो बिल्डिंग सुंदर मानी जाए। सारे के सारे बिल्डिंग सेम बनते हैं। एंड सर आपको मैं बताना चाहता हूँ, एनरॉक की एक रिपोर्ट है जिसने बताया है कि 42% ऑफ द रिकग्नाइज्ड रेजिडेंशियल रियल एस्टेट का जो वैल्यू वाइज बेसिस है इंडिया का एमएमआर में हुआ है। दिस इज द पोटेंशियल महाराष्ट्र की और एमएमआर की। और इसके लिए सर आपको एक हाथ जोड़ के विनंती है, आप बिल्डरों के लिए कुछ मत कीजिए। सर आप बिल्डरों के लिए कुछ मत कीजिए, लेकिन यहां पे नौकरियां बढ़े उसके लिए बहुत सारा कीजिए। सर मुंबई एक तरह से ब्लेस्ड है।
हम ऑलवेज लीडर रहे हैं, 100 साल की हमारी हिस्ट्री है, हम लीडर रहे हैं। ये सपनों की नगरी रही है लोगों के लिए। इस सपनों की नगरी को और बढ़ाने के लिए मैं कहता हूं सर, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग, एंटरटेनमेंट, आप अगर एंटरटेनमेंट के दरवाजे खोल दें, बॉलीवुड की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसको और कुछ प्रोत्साहन दें। इंटरनेशनल शोज जो होना चाहते हैं, आजकल हैदराबाद चले जाते हैं, बेंगलोर चले जाते हैं, वो सबको मुंबई में इनवाइट करें। और अगर आप दुनिया की सबसे बड़े इवेंट्स यहाँ पे करें। सर मैं रिसेंटली सिंगापुर गया था, वहाँ पे वो F1 की जो ऑटोमोबाइल रेसिंग होती है, उसकी वजह से सिंगापुर के होटल रूम्स जो $350 में बिकते थे, वो $2000 पर नाइट में बिक रहे थे। दैट इज द काइंड ऑफ क्राउड जो दुनिया भर से खींच के सिंगापुर वहाँ पे लेके आई थी। सर मेरा तो ये मानना है, आप मुंबई थाने को एक IT और कमर्शियल कॉरिडोर डिक्लेयर कर दीजिए, ताकि हम बेंगलोर और हैदराबाद का टक्कर कर सकें। हैदराबाद और बेंगलोर और सर गुरुग्राम ने मुंबई से और थाने से और पुणे से पूरी हमारी इंडस्ट्री को निकाल के ले गए हैं। सर आज की तारीख में गिफ्ट सिटी भी वही कर रहा है, बट हमको भी उसका मुंह तोड़ जवाब देना पड़ेगा और मुंबई थाना कॉरिडोर को एक तरह से इंडस्ट्रियल या कमर्शियल हब डिक्लेयर करके आप हमें प्रोत्साहन दीजिए, हम वहां पे डेवलपमेंट करेंगे और पूरे इंडिया से जितना इन्वेस्टमेंट होता है वो सारा ये एरिया में ले आएंगे। सर आपने जो प्रीमियम रिडक्शन किए थे, वो ये सबके चेहरे पे हंसी लाई है, यही चेहरे पे नहीं, हमारे सब कस्टमर्स के चेहरे पे भी हंसी लाई है। जैसे अजय भाई ने बताया, मुंबई इज 9 to 10 times more expensive than Chennai, 15 to 20 times more expensive than Bangalore। ये इस तरह की जो डिवाइड है वो नहीं चलनी चाहिए। उसके लिए सर ये प्रीमियम रिडक्शन वन टाइम नहीं सर, इसको रैशनलाइज कर दीजिए। हमारे प्रीमियम्स एक ही टाइम पे आप इतने कर दीजिए, जैसे अजय भाई ने कहा UDCPR के हिसाब से, ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट की बढ़ोतरी हो। और सर आप राइट हो, जब आप ये प्रीमियम्स रिड्यूस करोगे तो इससे आपकी या स्टेट की आमदनी बढ़ेगी, क्योंकि 256 इंडस्ट्रीज जो रियल एस्टेट पे रिलाई करते हैं वो सारे आगे बढ़ेंगे सर, और स्टेट को जो GST की रेवेन्यू मिलती है वो भी ज्यादा मिलेगी। सर UDCPR करने का एक और रीजन शायद अजय भाई का ये था कि मुंबई में जितने DCPR है, गंगराड़ी सर, there is a big divide in the premiums that are paid across various types of DCPR, whether it is 3311 and 3320, just to give you an example, both create PAPs. But sir, in one case you are paying 10%, in the other case you are paying 100% as a premium. Sir, this kind of thing divides the suburbs from the city. We have to see the overall growth of the entire city, sir. There should be rationalization of premiums across the board. सर स्टैम्प ड्यूटी भी एक तरह से आप रैशनलाइज कर ही दो। आई एम जस्ट सेइंग रैशनलाइज सर। सर बेसिकली स्टैम्प ड्यूटी विच इज देयर शुड बी एट 3%, एम आई राइट? स्टैम्प ड्यूटी शुड बी एट 3% सर। और अगर आप ये स्टैम्प ड्यूटी 3% अनाउंस कर दो, मैं आपको बोलता हूं ये जो डिप्रेशन पूरी दुनिया बात कर रही है सर, रियल एस्टेट इंडस्ट्री अपने स्टेट को यहां से जरूर निकालेगी। और मेरी एक लास्ट आपसे रिक्वेस्ट रही है सर कि IT इंडस्ट्री काफ़ी आगे बढ़ गई है। आज को आपको अगर मार्स जाना है, मून पे जाना है, तो भी आप कंप्यूटर के प्रोग्राम से आप पूरा रॉकेट निकाल सकते हो। सर TCS और इन्फोसिस जैसी कंपनीज को आप इनवाइट कीजिए और EODB पर्पसेस के लिए पूरी की पूरी बिल्डिंग DCR उस पर डाल दीजिए सर। दे विल नॉट ओनली बी एबल टू गिव यू अप्रूवल्स फॉर 80% ऑफ द केसेस, बट आपकी जितनी कलेक्शंस है वो टाइमली होगी और यहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरेक्शन ना होने की वजह से काफी फायदा होगा स्टेट को। विद दैट आई लीव माय हम्बल सबमिशंस विद यू सर। थैंक यू वेरी वेरी मच। Thank you very much, Baman sir, for your kind words. सर हमारे चेंबर के सर बाय पॉपुलर डिमांड में वापस आ गया हूं एक और ये लेके। सर अगर आप ये 3% स्टैम्प ड्यूटी कर देते हो तो रियल एस्टेट फ्रेटर्निटी विल सपोर्ट द कस्टमर बाय पेइंग इट आवरसेल्व्स। थँक यू। आणि मी आता माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे साहेबांना विनंती करतो की त्यांनी या ठिकाणी आपले मनोगत व्यक्त करावे। Can we please, with the hugest round of applause, welcome our Honorable Chief Minister Shri Eknath Shinde ji.
क्रेडाई MCHI ग्रँड प्रॉपर्टी एक्स्पो या कार्यक्रमाला उपस्थित MCHI क्रेडाईचे प्रेसिडेंट बोमन इराणी, अजय अशर, आमचे नगर विकास 1 आणि अतिरिक्त मुख्य सचिव भूषण गगराणीजी, MMRDAचे श्रीनिवासनजी, विजय सूर्यवंशी, दीपक गरोडिया, धवल अजमेरा, सुखराज नहार, डॉमिनिक रोमेल, उपस्थित सर्व मान्यवर, डेव्हलपर्स, क्रेडाई MCHIचे सर्व सदस्य आणि पत्रकार मित्रांनो, आज मी सगळ्यांचं मनापासून या ठिकाणी अभिनंदन करतो. क्रेडाई MCHI चे सर्व सदस्य आहेत, पदाधिकारी आहेत, डेव्हलपर आहेत, या सगळ्यांचंच पुन्हा एकदा खूप खूप अभिनंदन आणि शुभेच्छा आपल्याला. और यहाँ पर मैं सभी लोगों को आज के एक्सपो में, क्या हुआ, लाइट गया है क्या, सभी का स्वागत भी फिर एक बार करता हूँ. अपने राज्य में सिविलाइजेशन और अर्बनाइजेशन बहुत ही बड़े पैमाने पर हो रहा है. इस वजह से शहर मेट्रो सिटी में ट्रांसफ़र हो रहे हैं और बहुत से लोग जो है अपने उदर निर्वाह के लिए शहरों में आते हैं और उनका सबका एक ही बड़ा सपना होता है कि घर लेना. बराबर है ना? घर लेना, और वो अच्छा क्वालिटी का होना चाहिए और अफोर्डेबल भी होना चाहिए. जो पैसे दे सकता है उसके लिए बड़े घर ठीक है, लेकिन जो हमारे सामान्य नागरिक है उनकी भी जो एक सपना रहता है कि घर मिलना चाहिए सबको, और इसलिए ऐसे प्रॉपर्टी एक्सपो जो है वहाँ पर मैंने देखा कितने स्टॉल है, 100 से ज़्यादा है, बराबर ना. तो इसमें देखा कि कई वहाँ पर ही सब आते हैं, देखते हैं वहाँ पर कितने स्क्वायर फीट का फ्लैट है, किसको छोटा चाहिए, मीडियम चाहिए, बड़ा चाहिए, सब यहाँ देखने को मिलता है. और अभी ऑनलाइन भी अब रजिस्ट्रेशन भी वहाँ पर हो रहा था. मतलब गवर्नमेंट अच्छा काम कर रहे हैं ना, IGR हमारा. और सामने रजिस्ट्रेशन भी हुआ मेरे सामने. तो ये बहुत बड़ी अच्छी शुरुआत है. कोविड के वजह से पिछले 2 साल में ऐसे कोई एग्जीबिशन नहीं हुआ. मेरे ख्याल से इधर ही कोविड सेंटर भी बनाया था, श्रीनिवासन, बराबर है ना, जब आर्य राजीव थे उसका. और जैसे फटाफट उसकी ज़रूरत थी तो MMRDA ने बड़ा कोविड सेंटर 1000-2000 बेड का बना दिया. थाना में जीतू भाई इधर है, अजय भाई है. थाना में भी हम लोग ने 22 दिन में 1100 बेड का बड़ा हॉस्पिटल खड़ा कर दिया. तभी MCHI, क्रेडाई सभी लोगों ने सपोर्ट किया, इसलिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ. और इसीलिए ऐसे जो एग्जीबिशन होते, एक्सपो होते, इसमें अच्छा रिस्पांस होता है लोगों का, ताकि उनको फ़ायदा हो जाता है इसमें और आपको भी फ़ायदा होता है, आपकी बिक्री भी हो जाती है. बराबर ना? अभी तो अच्छे दिन है आपके, ऐसे बुरे नहीं है. हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने आम आदमी को उसका घर
दिलाने के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना भी शुरू कर दी है। और मैंने जैसे कहा कि अपना खुद का मकान होना ये सपना हर एक का होता है, उसे मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत बड़ी मात्रा में शुरू किया है। महाराष्ट्र के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में इस योजना को अभी कल ही हम लोग ने उसका पूरा रिव्यू लिया था और बड़े पैमाने पर ऐसे घरों की निर्माण जो हो रहा है इस पूरे राज्य में, ये भी खुशी की बात है। और इसलिए अभी जो कहा था कि अजय भाई ने कहा, हमारे बोमन जी ने कहा कि हमें सहूलियत जो है, प्रीमियम है, स्टैम्प ड्यूटी है, उसमें देने की आवश्यकता है। तो हम लोगों ने पहले पिछले बार भी ऑलरेडी द स्टेट गवर्नमेंट हैज़ गिवन मेनी फैसिलिटीज़ टू बूस्ट द रियल इस्टेट सेक्टर, हम लोगों ने पहले ही शुरुआत कर दी है। और प्रीमियम को जब भी 50% किया था, स्टैम्प ड्यूटी में भी सहूलियत की थी। और यूनिफाइड DCPR जो है, मेरे ख्याल से उसके वजह से बहुत ही फायदा हुआ है ना, बराबर ना? वी हैव अप्लाइड द यूनिफाइड DCPR, इट हैज डेफिनेटली बेनिफिटेड रियल एस्टेट सेक्टर, हुआ है ना, सबको फायदा हुआ है। और मैं हमेशा कहता हूँ दिस सेक्टर इज द सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइडर आफ्टर एग्रीकल्चर। ये कृषि के बाद, एग्रीकल्चर के बाद बहुत ही हजारों लाखों लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट देने वाला एक बहुत बड़ा सेक्टर है। और इसीलिए और बहुत ही जो इंडस्ट्री, मैनी इंडस्ट्रीज आर डिपेंडेंट ऑन इट, कई लोग हैं, 200 से 250 मेरे ख्याल से। जब ये आपको मैं प्रीमियम का वो सब दे रहा था, स्टैम्प ड्यूटी का रिक्वेस्ट सबको कर रहा था, तभी कई लोग बोले ये सब इतना सब आपने करा है तो आप क्या डेवलपर हो क्या? मैं बोला कोई डेवलपर मैंने कुछ नहीं, लेकिन डेवलपर की परिस्थिति मैं जानता हूँ और अभी उनको ज़रूरत है कि अभी हेल्प की ज़रूरत है। तभी ऑक्सीजन पे थे, अगर हम सपोर्ट नहीं करते थे वेंटिलेटर पे जाते थे। और इसलिए हम लोगों ने सपोर्ट उस वक्त किया है। और लेकिन हमारा इतना ही सरकार का एम है कि आप लोगों ने भी जो घर है देने का है, जो कॉमन पीपल है, उसको एक्सेसिबल, अवेलेबल एंड अफोर्डेबल, ये घर आपको बनाना भी ज़रूरी है। बनाएंगे ना आप? जो बड़े भी बनाओ, छोटे भी बनाओ, मीडियम भी बनाओ। तो ये सभी लोगों का एक सपना होता है कि यहाँ पर उनको घर लेना आसान हो जाए। और इसलिए हम लोग आपके साथ हमेशा, आपने भी सपोर्ट किया है कोविड में, जब भी हम लोग ने कहा है कि यहाँ पर कोविड सेंटर बनाना है या हेल्प करना है, तो हमेशा ये जो रियल इस्टेट सेक्टर है, इन्होंने सरकार के साथ मिलकर हमेशा साथ दिया है। खाली अपना, और जिस शहर में आप लोग काम करते हो, मैं हमेशा कहता हूँ इस शहर से आपको भी एक अटैचमेंट होनी चाहिए, लगाव होना चाहिए। और निश्चित रूप से हम बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाते हैं और उस शहर से भी अटैचमेंट रखते हैं, एक आपको भी इस शहर से लगाव होता है। इसलिए कई कारपोरेशन जो लोकल बॉडीज जो है, स्थानिक स्वराज्य संस्था जैसे ठाणा है, मुंबई है, कल्याण डोंबिवली है, जैसे कई नवी मुंबई है, उसमें भी आपका MCH है, क्रेडाई का जो कुछ योगदान रहा है, कुछ शहर का ब्यूटिफिकेशन करना है, वहाँ प्लांटेशन करना है, मीडियन में प्लांटेशन करना है, चौक ब्यूटिफाई करना है, लेक ब्यूटिफाई करना है, तो आप लोगों ने हमेशा सपोर्ट किया है। और ये ज़रूरी भी है क्योंकि हम लोग साथ साथ में एक डेवलपर और एक गवर्नमेंट और लोकल बॉडीज, ऐसा कोई अलग नहीं है। एक जब हम लोग टीम बनकर काम करते हैं
तो निश्चित रूप से वो शहर की सुंदरता बढ़ जाती है। और इसीलिए कई लोग जो है MMR में है, जो हम लोग इंफ्रा प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर श्रीनिवासन बैठे, MTHL आपने देखा है। MTHL जो है वो ये वरली शिवड़ी नावा सेवा, मतलब वरली से अभी पहले शिवड़ी नावा सेवा था, जैसे ठाना, नवी मुंबई, रायगढ़ 2 घंटे लगते, अभी तो तुरंत हम लोग पहुँच सकेंगे, 20 मिनट में पहुँचेंगे। वो भी हम लोग यहाँ वरली लेके कोस्टल रोड, मुंबई कोस्टल तक ले रहे हैं। मतलब मुंबई का कोई भी व्यक्ति जहाँ रायगढ़ जाना है उसको तो 20 मिनट में जाएगा, नहीं तो 2 घंटे लगेंगे। ये भी इंफ्रा प्रोजेक्ट हम लोग कर रहे हैं। और जैसे कोस्टल रोड है, अभी वेस्टर्न में ट्रैफिक होती है, ईस्टर्न में भी मैंने श्रीनिवासन को कहा है कि अभी ठाना जाना है मुंबई में, मुंबई से थाना, थाने से मुंबई या घोड़बंदर अहमदाबाद से गाड़ियाँ जो आती है वो मुंबई पहुँचे। इसके लिए जो ईस्टर्न एक्सप्रेस है उसे एक डायरेक्ट एलिवेटेड रोड बनाया जाए, फ्लाईओवर डायरेक्ट थाना से मुंबई तक, जो सर्विस रोड पे चलेगा। उसका अभी DPR भी बनाया है। कहाँ थे, अपना स्टेटस क्या है श्रीनिवासन? जो थाना का एलिवेटेड जो रोड है डायरेक्ट अपना घोड़बंदर से आगे, जैसे गडकरी साहब का उधर फाउंटेन में ब्रिज बन रहा है वो अहमदाबाद पे जाने के लिए, वहाँ तक जोड़ रहे हैं हम लोग। मतलब डायरेक्ट वहाँ का कोई भी व्यक्ति डायरेक्ट मुंबई पहुँच जाएगा। मतलब ईस्टर्न जो फ्रीवे तक पहुँच सकता है, जो बीच में ब्रेक हुआ है, तो ये आसान हो जाएगा आपको सबको। दूसरा, वेस्टर्न में भी जो कोस्टल हाईवे है उसके लिए भी काम जोर से शुरू है। वह बांद्रा वर्सोवा जो सीलिंग है, हम जो वरली बांद्रा है, बांद्रा वर्सोवा तक लेके जा रहे हैं, और वर्सोवा से विरार तक लेके जा रहे हैं, वो भी सीलिंग। मतलब ये जो इंफ्रा प्रोजेक्ट है इसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे हो गया। मुंबई पुणे पहले क्या था, 7-8 घंटे लगते थे। हमारे आदरणीय शिवसेना प्रमुख बाला साहब जी ने कहा, गडकरी साहब जब भी मंत्री थे, जैसे मेरे पास MSRDC डिपार्टमेंट अभी है, तो उनके पास था, वो मुंबई पुणे एक्सप्रेस बना दिया। अभी 2-2.5 घंटे में हम लोग पहुँचते हैं। वहाँ की इंडस्ट्री बढ़ गई, सर्विस इंडस्ट्री, IT इंडस्ट्री बढ़ गई, रियल इस्टेट बूम हो गया, हुआ है ना उधर भी। तो डेली लोग अप डाउन करने लग गए मुंबई पुणे एक्सप्रेस के वजह से। अभी हम लोग वहाँ पर एक टनल बना रहे हैं, यहाँ पर खालापुर से सिंहगढ़ इंस्टीट्यूट, जो घाट सेक्शन है पूरा अवॉइड हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा, डायरेक्ट मुंबई पुणे आधे घंटे में जल्दी पहुँच जाएंगे, आधे घंटे से। तो ये सब गवर्नमेंट कर रही है, और ये आप ही लोगों के लिए कर रहे हैं। मुंबई पुणे रिंग रोड कर रहे हैं हम लोग। गोवा का जो है अभी कितने घंटे लगते हैं जाने के लिए, रोड खराब है, अभी बन रहा है, लेकिन गोवा का भी मुंबई सिंधुदुर्ग, मुंबई गोवा एक्सेस कंट्रोल रोड कर रहे हैं अपन, एक्सेस कंट्रोल। अलीबाग में भी आपकी बहुत प्रॉपर्टी है ना, तो वसई विरार अलीबाग कॉरिडोर भी बना रहे हैं हम लोग। और अपन श्रीनिवास और ये भी कर रहे हैं ना, बोरीवली का टनल, थाना बोरीवली टनल, वो भी कर रहे हैं। तो ये जो है ये फास्ट यहाँ से वहाँ कहीं भी जा सकते हैं हम लोग। और आपको बताऊंगा कि एक्सेस कंट्रोल के ऊपर गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, फोकस कर रही है। 5000 किलोमीटर के एक्सेस कंट्रोल रोड हम लोग बनाने वाले हैं, 5000 किलोमीटर के, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कहीं से भी कोई भी व्यक्ति जिसको जाना है वो जल्दी पहुंच सकता है। और ये इसीलिए कर रहे हैं कि आपको, इस राज्य के नागरिक को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। अभी मुंबई में हम लोग बैठे यहाँ पर, मुंबई में भी आपको मालूम है हर साल में बारिश में खड्डे होते हैं और उसमें सबको तकलीफ होती है। फिर मीडिया भी हमारे सब लोग खड्डे गिनती है, 2500 है, 3000 है, 2700 है, बराबर ना। फिर जैसे रिपेयर हो जाए तो कम होते हैं, लेकिन फिर दूसरे साल भी तकलीफ होती है। इसलिए मैंने जैसे ही चीफ मिनिस्टर मैं बन गया, वैसे मैंने चहल को बुलाया, कमिश्नर को, बोले बार बार खड्डे में क्यों परेशान कर दे, सोल्यूशन क्या है? तो बोले सीमेंट कंक्रीट के रोड करने चाहिए। तो बोले करने में क्या दिक्कत है, पैसे नहीं क्या? बोले है। तो ऐसा करो, जैसे उन्होंने कहा मुझे कि हम लोग हर साल 50 किलोमीटर के रोड लेते हैं कंक्रीट के, तो मैंने कहा उनको 50 किलोमीटर क्यों कर रहे हैं?
500 किलोमीटर नहीं ले सकते क्या? तो आपको बताऊंगा, चहल जी ने 450 किलोमीटर के रोड सीमेंट कंक्रीट के अभी ले लिए। 5,500 करोड़ के टेंडर फ्लोट हो गए। और हमने कहा है कि पहले बड़ी बड़ी कंपनियां डिस्क्वालीफाई होती थी, L&T और बड़े शाहपुर जी वगैरह बड़ी कंपनियां डिस्क्वालीफाई होती थी। मतलब क्यों होती थी मुझे नहीं मालूम, लेकिन अभी हमने कहा है कि बड़ी कंपनियां जो है रेपुटेड है, उनको काम दो और क्वालिटी काम करेंगे और बिफोर टाइम वो काम करेंगे। तो ये जो है सब जो कर रहे हैं, और मुंबई में आप देखेंगे चेंज आपको दिखाई पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग देने के लिए आए हैं पब्लिक को। लेना हमको मालूम नहीं, देना हमको मालूम है, और इसलिए देने वाले लोग सरकार में बैठे हैं। और हमारे उप मुख्यमंत्री देवेंद्र जी जो है, वो पिछले 5 साल उन्होंने मुख्यमंत्री के रूप में काम किया है, उनको भी एक्सपीरियंस है। और अभी हम लोग दोनों भी देखो, थोड़ा चेंज लग रहा है ना आपको, सरकार बदल गई है तो चेंज भी लग रहा है। तो जैसे अजय भाई ने कहा, जून में हम लोगों ने कुछ अच्छा कार्यक्रम करके दिखाया, तो उस कार्यक्रम का फायदा भी होना मांगता है। 3 महीने में हमारी सरकार ने 72 बड़े डिसीजन लिए। 72 पेट्रोल डीजल के पैसे कम कर दिए, बराबर है किए। उसके बाद किसानों को जो बेनिफिट देना है वो दे दिया हम लोगों ने, सरकार ने हमारे। जैसे NDRF के रूल नॉर्म्स थे उससे दुगना कर दिया। जो 2 हेक्टर की ज़मीन को नुकसान देना था, हम 3 हेक्टर कर दिया। और जहाँ 1500 करोड़ रुपए देने का जो भी नुकसान हुआ है, वो देने को अगर सरकार को लगते, वहाँ 6000 करोड़ रुपए का वहाँ पर उनको देने का निर्णय सरकार ने लिया है। क्योंकि ये किसान भी हमारा एक बहुत जो अन्नदाता है, उसे भी हमको सुखी रखना है। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यहाँ श्रीनिवासन बैठे, जैसे MMR रीजन में पूरे 337 किलोमीटर 337 किलोमीटर की मेट्रो है। ये मेट्रो लाइन जो है वो कंप्लीट करने के लिए पैसे की आवश्यकता है। मेट्रो 3 का काम रुका पड़ा था, हम आते आते देखो बारिश आ गया लगता है। मेट्रो 3 का काम रुका था, उसके लिए भी हमारी सरकार ने 60,000 करोड़ के लोन रेज करने की परमिशन इनको दे दी है। 60,000 करोड़। तो अभी इन टाइम बिफोर टाइम ये सब प्रोजेक्ट हो जाएंगे। तो मेट्रो 337 किलोमीटर की मेट्रो एयर कंडीशन की गाड़ी में बैठेंगे, क्यों आप अपनी खुद की गाड़ी लाएंगे? जिस शहर राज्य के ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छी होती है वो गाड़ियाँ नहीं लेके आते। ये ट्रैफिक कम हो जाएगी, मेरे ख्याल से 19 लाख गाड़ियाँ कम हो जाएगी मेट्रो कंप्लीट शुरू होने के बाद। 19 लाख गाड़ियाँ। तो ये पॉजिटिव सब सरकार काम कर रही है। और निश्चित रूप से इंफ्रा प्रोजेक्ट के ऊपर हमारी सरकार ने बहुत ध्यान दिया है। और बाकी जो समाज के जितने भी वर्ग हैं उनको अच्छे सहूलियत मिलनी चाहिए, उनके जीवन में बदलाव आना चाहिए, इसलिए हमारी सरकार पूरी तरह काम कर रही है। और कई योजनाएं हैं यहाँ पर, जैसे आपने कहा है कि जो रीडेवलपमेंट है, थाना में नहीं मुंबई में भी रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं। उसे हम गगरानी साहब को मैंने कहा कि हमें जो रीडेवलपमेंट जो है प्रोजेक्ट जो है उसे आगे बढ़ाना है। कानून किसके लिए होता है? यूनिफाइड जो हमारा अर्बन डेवलपमेंट है, ये जो है ये लोगों के भलाई के लिए काम करने की आवश्यकता है। और जैसे आप जानते हो यूनिफाइड DCPR जब हो गया तभी आपके MCHI क्रेडाई नेरेडको के लोगों को बुलाया था हमारे लोगों ने। मैंने कहा था कि उनको बुलाओ, ऐसा कभी नहीं हुआ था कि निर्णय लेने से पहले कई लोगों की ओपिनियन लेने की कभी बात नहीं हुई थी। लेकिन मैंने कहा था जो भी डिसीजन हम लेंगे सिर्फ पेपर पे नहीं रहना चाहिए, उसका एग्जीक्यूशन होना चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए, नहीं तो उस कानून और रूल्स का फ़ायदा क्या है? और तभी जाके यूनिफाइड DCPR हो गया और इसीलिए उसका फ़ायदा हो रहा है। एक ही रूल सब जगह हुआ है
और उसका फ़ायदा पब्लिक को हुआ है। जैसे अभी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, उससे हम लोग आगे बढ़ाएंगे, वहाँ पर वो ज़रूरी है, वो ज़रूर करेंगे हम लोग। आपने कहा है कि यहाँ पर मुंबई में जो, जैसे अजय भाई ने कहा यहाँ पर कि जैसे साउथ मुंबई, मैं खुद ही गगरानी साहब को कहा था, साउथ मुंबई में जैसे बिल्डिंगें थी जैसे ब्रिटिश ज़माने की, अभी जो बिल्डिंग होते हैं सीधे सीधे खड़े हो जाते, कांच के जैसे बॉक्स हो जाते, तो आपको भी अच्छा नहीं लगता है, बराबर ना? उसका डिज़ाइन, फीचर डिज़ाइन हो, फीचर एलिवेशन हो, अच्छा हो, फसाड हो, सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो उसके लिए आपको जो तकलीफ है, जो भी, वो बताओ आपको क्या चाहिए गवर्नमेंट के पास से, कौन सा इंसेंटिव चाहिए वो बताओ। लेकिन एक आइकॉनिक बिल्डिंग जो है वो हर एक डेवलपर ने बनाने की आवश्यकता है। ये हमारी जो कि एक शोभा है, जैसे हम लोग कहते हैं ब्रिटिश चले गए, लेकिन उन्होंने जो डिज़ाइन के बिल्डिंग बनाए हैं, आज सिर्फ उसमें हेल्थ और सेफ्टी का ध्यान अपने को रखना है, सेफ्टी फर्स्ट, और इसलिए वो आप करो। और जो भी हमारे ऐसे गवर्नमेंट से चाहिए आपको, हमारे यूडी विभाग से निश्चित रूप से वो देने की जो आवश्यकता है वो ज़रूर दिया जाएगा, क्योंकि एक मुंबई शहर है, हर एक शहर के अलग अलग पहचान है। जैसे थाना की अलग है, कल्याण डोंबिवली अलग है, नवी मुंबई अलग है। तो पानी आ रहा है क्या? काम बराबर किया ना पक्का आप लोग? आपके एक्सपो और एग्जीबिशन पे ऊपर वाला भी मेहरबान है। तो निश्चित रूप से हर शहर में आपने आइकॉनिक बिल्डिंग बनाने के लिए ज़रूर आप इनिशिएटिव ले लो। पब्लिक स्पेसेस है, अर्बन लैंडस्केप है, बिल्डिंग पे क्राउन्स है, इसका सब आप लोग, ठाणे में हमारी कई बिल्डिंग है ऐसे बनाई है, और मुंबई में भी कई है, लेकिन आप ज़्यादा काम करो उसमें। सिर्फ एफएसआई, तो अभी एफएसआई का कोई तकलीफ नहीं है, बिल्कुल एफएसआई की कोई तकलीफ नहीं। और इसमें मैं एक ही कहूँगा, फर्स्ट सिग्निफिकेंट इम्प्रेशन, ऐसा जो एफएसआई का ये फुल फॉर्म है, ऐसा होना चाहिए, ऐसी मेरी भावना है। ऐसी बिल्डिंग बनाओ, और ज़रूर हम लोग आपके लिए सोचेंगे। ये इसके बाद बोमन जी ने भी कुछ कहा है, उसमें भी हम लोग पॉजिटिव स्टेप उठाएंगे। निश्चित रूप से आपको जो है देने की आवश्यकता है वो देंगे। मुंबई के बारे में भी अजय भाई ने कहा है कि मुंबई में भी जैसे यूनिफाइड डीसीपीआर के जैसे रूल्स होने चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग ज़रूर सोचेंगे, क्योंकि सोचना है, क्योंकि आप लोग अच्छा काम कर रहे हो। और स्टैम्प ड्यूटी और जो प्रीमियम की बात है, उसके बारे में गवर्नमेंट जो है निश्चित रूप से पॉजिटिवली सोचेगी। हमारे जो मंत्रिमंडल के सहयोगी है उनसे अवश्य इस पे चर्चा हम लोग करेंगे, और चर्चा कर इसमें आपको, क्योंकि हमारी गवर्नमेंट पॉजिटिव सोचने वाली है, गवर्नमेंट विल थिंक पॉजिटिवली। और जो प्रीमियम और स्टैम्प ड्यूटी का जो इशू है, और उसमें से रास्ता निकालने का काम, कोशिश हमारी सरकार करेगी। आप खाली इतना ही करो। ये बहुत ज़ोर से बारिश आया है। अपना ऑफिस बिफिस बराबर जगह पे है ना? हाँ, त्यामुळे नहीं राहू दे। आज का जो MCHI क्रेडाई का जो एग्जीबिशन यहाँ पर है लगाया है, वो सभी डेवलपर को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। सभी लोगों को यहाँ पर बधाई देता हूँ। और मेरी एक ही आपसे सबसे गुजारिश है,
जो मुंबई में रीडेवलपमेंट के जो प्रोजेक्ट अटके पड़े हैं, उसमें क्लस्टर भी हो, रीडेवलपमेंट के प्रोजेक्ट हो, उसे हमको आगे बढ़ाना है। क्योंकि कई लोग कहते हैं कि मुंबई के लोग बाहर चले गए हैं, तो मुंबई के लोग जो मूल मुंबईकर है वो मुंबई में वापस आने चाहिए। इसलिए हमारी भी जिम्मेदारी है। और इसमें जैसे सेल्स बिल्डिंग है, माड़ा की बिल्डिंग है, MMRD है, इसमें ये फनेल जोन की बिल्डिंग है, डोमिनिक जी, ये सारे हैं जो काम रुका पड़ा है, वो निश्चित रूप से हम लोग आगे बढ़ाएंगे। और उसमें जो रूल्स में, कानून में कुछ बदलाव करने की, बहुत से बदलाव तो हम लोगों ने किए हैं, चेंजेस जब भी आप लोगों ने कहा है तभी हम लोगों ने बदलाव किया है। और उसमें आगे भी करेक्शन गवर्नमेंट करेगी, निश्चिंत रहो। जब भी आपको कम हो गए, नहीं, सरकार देने वाली सरकार है और इसलिए कई डिसीजन हम लोगों ने लिए हैं। मैं गगरानी साहब को कह रहा था कि ये जो रियल इस्टेट है, डेवलपर जो है, ये डेवलपर और उनके ऊपर जो 200-250 अलाइड इंडस्ट्रीज है, सर्विस इंडस्ट्री है, उसे हम लोगों को मदद करने की आवश्यकता है कि लाखों लोग काम करते हैं उसमें। तो ये पॉजिटिव सोचने वाली सरकार है। इतना ही मैं आपको कहूँगा। फिर एक बार आपने मुझे इस उद्घाटन में, इस कार्यक्रम में बुलाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जैसे हम लोग सब, मैं चीफ मिनिस्टर बन गया, लेकिन चीफ मिनिस्टर मीन्स सीएम, मैं अपने आप को सीएम मीन्स एक कॉमन मैन हर वो हिसाब से समझता हूँ। और इसलिए मेरे में कोई चेंज आपको दिखाई पड़ा क्या? अजीब बात नहीं ना, वो चेंज दिखाई पड़ेगा भी नहीं। क्यों चेंज हो गया तो आप बोलेंगे अरे कल तो एकनाथ शिंदे ऐसा था, आज बदल गया। तो हमें साथ में आगे बढ़ना है। ये रियल इस्टेट भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इंडस्ट्री है, इम्पोर्टेंट सेक्टर है इस राज्य में। और हम जानते हैं कि कभी आपको हेल्प करना है और कभी आपको सपोर्ट करना है, लेकिन बार बार आप खाली मांगते मत रहो, देने का भी काम आपको करना है। अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे आइकॉनिक बिल्डिंग हो, कोई शहर का ब्यूटिफिकेशन हो, उसमें भी आपका योगदान देने की आवश्यकता है। इतना ही मैं कहूँगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। थैंक यू वेरी मच सर। और मैं अब आपको बताना चाहूँगा कि हमने क्रेडाई MCHI ने महाराष्ट्र में 500 से ज़्यादा झाड़ लगाए हैं और उसका एक छोटा सा टोकन ऑफ अप्रिसिएशन हम आपको देना चाहते हैं। कैन आई रिक्वेस्ट बमन सर टू प्लीज प्रेजेंट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र श्री एकनाथ शिंदे जी with certificate of 500 trees planted across Maharashtra by Credai MCHI. We would request Mr. Deepak Garodia ji to present the certificate of appreciation to Shri SV Srinivas ji. And a round of applause as we present sir. We request Mr. Dhaval Ajmera to once again present a token of appreciation to Dr. Bhushan Gagrani ji. Can we have a round of applause as we present a fondest token of appreciation? अब मैं निकुंज सांघवी जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो श्री वाई विश्वनाथ गौड़ जी, the MD of LIC HFL. Sir, we would request you to join us on stage and collect our token of appreciation. Sir is not here, but Nikunji, we would request you to please. We request if the dignitaries can come out, step ahead for a photograph. And also, I would request
सर हम आपको चाहेंगे कि आप 1 मिनट स्टेज पर रुकें। हम अपने वाइस प्रेसिडेंट और पास्ट प्रेसिडेंट्स जो हैं क्रेडाई एमसीएचआई के, उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहेंगे फॉर अ फोटो सेशन। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे कि वो स्टेज पर 1 मिनट और रुकें। हमारे पास्ट प्रेसिडेंट्स एंड वाइस प्रेसिडेंट्स को मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा। और सर हमारे एमसीएचआई ये है मुंबई चैप्टर, और हमारे पास अलग अलग चैप्टर हैं अलग अलग रीजन के। सो वी वुड रिक्वेस्ट द यूनिट हेड्स फ्रॉम थाने, केडीयू, नवी मुंबई, रायगढ़, मीरा भाईंदर, वसई विरार, पालघर बोईसर, भिवंडी, उरण द्रोणागिरी, अलीबाग, करजत, खोपोली एंड खालापुर आर यूनिट हेड्स। बट एक बार फिर हम क्रेडाई एमसीएचआई की तरफ से महाराष्ट्र के माननीय मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे जी का तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहेंगे। धन्यवाद साहेब, आपण या ठिकाणी आपले वेळ काढून आलात त्याबद्दल आपले हार्दिक आभार।